صاحب ابھی حال میں سفر عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر یہاں آنے کے بعد اسی علاقے میں سرگرم رہے، جمعے کی امامت بھی مسجد میں فرمائی اور مدرسے کے کام بھی دیکھتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس کا سالانہ اجلاس تھا، وہ یہاں کی ریاست کے صدر بھی ہیں، اس حیثیت سے وہ دارالعلوم دیوبند میں مدعو تھے۔ چنانچہ اتوار کے دن انہوں نے ایک جہاز سے دہلی جانے کا ارادہ کیا، اس کا ٹکٹ بھی حاصل کر لیا، لیکن کسی وجہ سے وہ جہاز چھوٹ گیا۔ فوراً ایئرپورٹ پر دوسرا ٹکٹ انہوں نے لیا اور 7:30 بجے کی فلائٹ سے وہ دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ کسی کو وہاں پر گمان میں نہیں ہے، خواب و خیال میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی اچانک بات پیش آئے گی یا صالحہ حادثہ ہوگا۔ ایک پرانی بات ہے، 8-10 سال پہلے جب یہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا تھا اور اس میں بھی علماء کرام کی اکثریت تھی، جیسا کہ آپ نے سنا ابھی مفتی سعید اکبر صاحب کو جب خیال سے حافظ عبدالصمد صاحب جو دعوت و تبلیغ میں مکاتب کے ذمہ دار ہیں ان کو بیچ راستے میں سے، اور اسی طرح مولانا اشرف علی صاحب کو ان کے ادارے سبیل الفلاح سے اٹھایا گیا، اور اس کے علاوہ اور کئی لوگوں کو اٹھایا گیا، جس میں سعید آباد کے اکثر نوجوان ہیں۔ ظاہر ہے کہ سعید آباد کے اکثر نوجوان مولانا عبدالقوی صاحب سے ربط ضبط ملتے جلتے رہتے ہیں اور ان کے امام کی حیثیت سے، مربی کی حیثیت سے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بھی رہتا ہے اور لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا ہے۔ اور ایک پرانی بات ہے، چارج شیٹ میں ان کا اس وقت میں نام کسی نے لیا ہوگا، وہ نام اس میں موجود ہے، اس نام کی بنیاد پر آج تک کسی قسم کی کوئی نوٹس نہیں آئی، کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، اور نہ ریاستی پولیس نے اور نہ احمد آباد کی پولیس نے اور نہ حکومت نے کسی نے بھی کوئی اشارہ نہیں کیا۔ نام کا اندراج ہے یہ تو معلوم ہی تھا، لیکن 10 سال کے بعد اچانک ایسے موقع پر جب الیکشن قریب میں ہے اور حالات جو ہے ملک کے صحیح نہیں ہے، یہ اپنے کام کے لیے دارالعلوم دیوبند کے اجلاس میں شرکت کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے اور 9:35 یا 40 کے قریب وہ ایئرپورٹ میں پہنچے۔ معمول کے اعتبار سے نارمل انداز میں، کوئی کسی قسم کا ٹینشن نہیں، اپنا ہاتھ کا سامان لے کر باہر نکل گئے۔ وہاں دو نوجوان مولانا کے شاگرد علماء ان کو لے کر بائی کار دیوبند جانے والے تھے، ان کو لینے کے لیے انتظار میں تھے اور مولانا ان تک پہنچ بھی گئے، اور ان لوگوں نے مولانا کا استقبال بھی کیا اور ان کا اٹیچی اور ان کا سامان بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور اسی اثنا میں 4 لوگ جو بالکل عام لباس میں تھے وہ مولانا کے قریب میں آ گئے اور چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور ان سب کا بورڈنگ پاس مانگا۔ جب بورڈنگ پاس انہوں نے دکھایا تو ان لوگوں نے سنا، یہ کہا کہ ہاں یہی ہے، اور اس کے بعد ان کو بازو لے گئے، لے جاتے ان کا فون بھی لے لیا، ان کا پرس بھی لے لیا، ان کی آئی ڈی جتنی تھی وہ سب لے لی، اور ان کا ان بچوں نے علماء نے ہاتھ میں لے لیا تھا وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور لے جا کر ایئرپورٹ کی جو پولیس آفس ہے وہاں لے جا کر مولانا کو باہر بٹھایا، ان دونوں کو اندر بٹھایا، اور اندر بٹھا کر ان سے پتے لینے میں اور جو ہے ان کے فون نمبرات وغیرہ لینے میں، مولانا سے کیا رشتہ ہے، مولانا سے کیا تعلق ہے، یہ پوچھنے میں مصروف رہے۔ ان میں سے دو چار آدمی تھے، ان میں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں کے آفیسر کہاں ہے پولیس اسٹیشن کے، وہ سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ احمد آباد کے پولیس آفیسر آئے ہوئے ہیں اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمارے علماء کے کان میں پڑی، اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہ کون تھے لینے کے لیے، کون آئے تھے، کون لے جا رہے تھے، کیا مقصد ہے، کچھ نہیں معلوم۔ وہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے رہے، اسی اثنا میں مولانا کو لے کر یہ لوگ وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ یہ لوگ وہیں بیٹھے گئے، بہت انتظار کیا لیکن مولانا کا کوئی معلوم نہیں ہو سکا۔ ان لوگوں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ لوگ جائیے، بات کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر آ کر کے دیکھا مولانا نہیں ہے، پولیس والوں سے پوچھ رہے ہیں تو پولیس والے کہہ رہے ہمیں نہیں معلوم۔ بالآخر وہ بڑے آفیسر صاحب آ کر ان لوگوں کو اوپر بڑھا ہوئے، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تم لوگ کہاں سوال ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ان لوگوں کو وہاں سے انہوں نے بھجایا۔ یہ غالباً اس پوری کارروائی میں 30-35 منٹ کا وقت لگا۔ 10 بجے کے قریب یا 10 بجے کے بعد فون ان بچوں کا آیا، تو ان بچوں کو فون ملا ہوگا ہمارے خدا، اور میں اس وقت میں وشاکھاپٹنم سے واپس آ رہا تھا
चुनाचे इन लोगों ने उसी वक्त असद भाई से रब्ता किया और फिर बात मशवरा हुआ कि यहाँ से टीम जाना चाहिए और वहाँ मौलाना के आने से पहले गुजरात में जाकर कोर्ट में मौजूद रहना चाहिए। चुनाचे ये लोग दूसरे दिन फौरन गए। उधर मौलाना महमूद मदनी बहुत फिक्रमंद हो गए, चूंकि इजलास चल रहा था, दारुल देवबंद में सारे उलमा मौजूद थे, मोहतरम साहब थे, कारी उस्मान साहब थे, मौलाना अशरफ साहब थे और न जाने कौन कौन उलमा थे। सब बात फैला दी गई और सबको बता दिया गया कि ऐसा अचानक नागवार वाकया पेश आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काफी मुतहर्रिक हो गए, फिक्रमंद हो गए, जिसके नतीजे में फौरन दूसरे ही दिन वो लोग लेकर के गुजरात पहुंचे। गुजरात पहुंचने के बाद दूसरे दिन हम लोग इस बात की उसमें थे कि मौलाना पर इल्जामात क्या है, किस जुर्म के तहत या किस बात के तहत मौलाना को गिरफ्तार किया गया। तो दूसरे दिन जो अंग्रेजी रोजनामा था जिसका तस्करा अभी करीमुद्दीन साहब कई मिनट में बार बार कर रहे थे, मैं आपको उसको सुनाता हूँ। इसलिए सुनाता हूँ कि मुझे आपकी शहादत चाहिए। जिस तरह हिंदुस्तान में अदालत उस्मा का एक कतार है, ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर अवाम की अदालत का भी बहुत बड़ा व्यापार है और उसका भी बहुत बड़ा वजन है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ इसकी रोशनी में कि जो इल्जाम इन लोगों ने लगाए हैं, क्या मौलाना उस इल्जाम की शख्सियत उस जैसी शख्सियत है या उससे कोसों दूर है और इन इल्जाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। शहर का, रियासत का, जिले का हर आदमी, हर इमाम, बल्कि हर बच्चा मुसलमान गवाही देगा ये जो इल्जाम लगाए हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। आप सुनिए कितने बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में कल बरोज एतवार दिल्ली एयरपोर्ट से इस्लामी रहनुमा मोहम्मद अब्दुल कवी को गिरफ्तार कर लिया है, जो 2003 की जिहादी साजिश और ISI की मंसूबाबंदी में शामिल है, जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की जानिब से रची गई थी। क्या आप इससे मुत्तफक हैं? आपको मालूम भी नहीं होगा ये तंजीम क्या है, ये चीज क्या है और ये साजिश क्या है। ये तो जो है बिल्कुल बेहुदा बेबुनियाद बात है। हम सब इसकी नफी करते हैं और इसकी तरदीद करते हैं। मोहम्मद अब्दुल कवी पीर के रोज सुबह अहमदाबाद लाया गया, जहाँ एक मकामी अदालत में पेश किया गया। सुबह नहीं लाया गया, उनको लाने में तकरीबन जो है कई 12-15 घंटे लगे हैं और 5 बजे अदालत में उनको पेश किया गया। अब्दुल कवी अशरफ के नाजिम हैं और खानाबाद सईदाबाद हैदराबाद में रहते हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही गिरफ्तार कर लिए गए। अब्दुल कवी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जानिब से कई मरतबा यह समन जारी किया गया है कि वो पुलिस के सामने हाजिर हो। कई मरतबा समन को नजरअंदाज किए जाने के बाद क्राइम ब्रांच के अफसरों ने चंद महीनों से उन पर गहरी नजर रखी। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि अब्दुल कवी दिल्ली में मुनाफिदा दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, टीम ने उन्हें एयरपोर्ट पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। यह भी बिल्कुल झूठ बात है। 2 महीने तुम नजर रखे हुए हो, 2 महीने में बंदा यहीं पर है, सफर कर रहा है, एयरपोर्ट पे जा रहा है, उम्रे के लिए जा रहा है, उम्रे से वापस आ रहा है, यहाँ के मकामी रियासती प्रोग्रामों में शरीक है, अकबरबाग की मस्जिद में इमामत कर रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, जुमे की खुतबा दे रहा है, मदरसे के काम में लगा हुआ है। उसने आते जाते में उनको नहीं पकड़ा, नहीं गिरफ्तार किया। दिल्ली के इंतजार क्यों किया तुमने? समन भेजा गया, कोई समन आज तक किसी के पास नहीं मिला। समन भेजा जाता है, अगर नहीं मिलता पोस्ट के जरिए तो रजिस्ट्री पोस्ट भेजी जाती है, उसका जवाब उनके पास मौजूद रहता है। वो किसने उसको समन को लिया है और किसके पास ये समन है, ये सब हम और आप सब जो है सवाल कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने ये लिखवाया है और इन इल्जामात के तहत उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट निकलवाया है। क्राइम ब्रांच चीफ जॉइंट कमिश्नर ऑफिस पुलिस AK शर्मा इंडियन एक्सप्रेस से और उस वक्त सब कार्रवाई करते, लेकिन एक वारंट भी किसी की तरफ से नहीं आ गया। ISI की साजिश का केस 5 वाकयात पर मुश्तमिल है, जिसमें टिफिन बॉक्स और हरीम पांड्या मर्डर केस और दूसरे दहशतगर्द वाकयात जो ISI की मंसूबाबंद साजिश है, जिसमें नजारा जो इशरत जहां इनकाउंटर केस में साबरमती जेल में महबूस है, ने कहा कि मुफ्ती सुफियान पतंगिया और रसूल पार्टी की क़यादत में मदरसे के तलबा और गुजरात के दीगर सेंटर से बच्चों को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मदी रवाना किया गया। अब्दुल कवी हैदराबाद के नौजवानों में एक मशहूर नाम है, जिन्होंने हैदराबाद के मुस्लिम बच्चों को लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ऐसे ही बांग्लादेश के दहशत कैंपों में भेजा है। इनमें असगर अली काबिल जिक्र नाम है, जिसका उन्होंने
जिसको उन्होंने पाकिस्तान भेजा है, और जो हरीश पांड्या के कत्ल में रास मुलव्वस है, उनके बड़े भाई मुफ्ती अब्दुल मोनी सदर जमात उलमा हैदराबाद है। जराए से मालूम हुआ कि मौलाना के भतीजे मोहम्मद अशरफ अली को दहशतगर्दी के इल्जाम में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसकी बाद अजा रिहाई हुई। क्यों रिहाई हुई? कोई जुर्म साबित नहीं हो सका, इसलिए रिहाई हुई। अब्दुल कवी हिंदुस्तानी जुर्म के दफात 123, 122, 121, 121 बी, 120 बी में मतलूब है मुजरिमाना साजिश रचना, असला हथियार जमा करना और मुल्क और देश के खिलाफ लड़ाई लड़ना। एयरपोर्ट पर अब्दुल कवी के फोन और उनके साथ मौजूद चंद नौजवानों के फोन जब्त कर लिए गए। उन्हें अपने खानदान से बात करने की इजाजत भी नहीं दी गई और बगैर किसी इत्तला के अहमदाबाद ले जाया गया। अब्दुल कवी के बिरादर मुफ्ती अब्दुल मोनी ने मौलाना सैयद महमूद असद मदनी जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा हिंद से मदद तलब की है और अपने भाई की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। क्राइम ब्रांच ने हिरासत में रहते ही उनसे तफ्तीश शुरू कर दी और यह भी पता चला कि उनके खानदान ने हैदराबाद में उनकी गिरफ्तारी पर सख्त नोट लिया है और क्राइम ब्रांच को चंद नौजवान कायदीन और तलबा फोन कॉल्स मौसूल हुए जिसमें उन्होंने अब्दुल कवी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। यह अंग्रेजी रोजनामे नामे का एक तर्जुमा है जिसको मैंने आपके सामने पेश किया है। इसमें से एक बात भी सही नहीं है। आप लोग इसकी शहादत दे रहे हैं, सब गलत है, बेबुनियाद है, झूठ है। हम ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत को भी और हमारी क्राइम ब्रांच को भी और यहाँ के पुलिस अफसरान को भी और अहमदाबाद के तमाम डिपार्टमेंटों को ये बात बताएं कि यहाँ का हर शहरी मौलाना की सदाकत और दियानत और सच्चाई और रास्तबाजी का कायल है, उसकी शहादत देता है और मौलाना किसी गैर कानूनी सरगर्मी में कभी मुलव्वस नहीं रहे। हम वर्षों से जान रहे हैं, आप देख रहे हैं, सारा बचपन यही गुजरा, वर्षों से इमामत कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी जो एक शरीफ इंसान के शान के लायक नहीं है, ऐसी किसी सरगर्मी में मौलाना मुलव्वस नहीं है। अब तो हमको यकीन हो रहा है कि हिंदुस्तान में जितने लोग पकड़े गए हैं वो ऐसे ही बेकसूर हैं, वो ऐसे ही बेकसूर, अब यकीन आ गया। लेकिन एक बेकसूर आदमी जिसका साफ और शफाफ माजी हमारे सामने है, जिसका सुबह से शाम तक किरदार हमारे सामने है, जो किसी गैर कानूनी गैर अखलाकी सरगर्मी में नहीं है, उस पर इस किस्म के इल्जाम लगाकर पकड़ा गया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की अटेंडेंस हो या हिंदुस्तान की आईपी हो या हिंदुस्तान का खुफिया महकमा हो, ये सब किसी और के साजिशों पर या किसी और के इशारों पर काम करते हैं, ये हकीकत तक नहीं पहुंचते और ये सच्ची राय या सच्ची तलाश करने के काबिल नहीं है। हम इस बात का अब यकीन कर रहे हैं कि सब बेकसूर नौजवान हैं, उन सब की भी रिहाई अमल में होना चाहिए और मौलाना की रिहाई को अमल में लाना चाहिए। आखिर में मैं आप हज़रात से कहूँगा कि हमारा जो यहाँ इजलास हुआ है ये कोई हुकूमत के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नहीं है। हम अपने मुहिब्बीन को और मौलाना के आशिकीन और चाहने वालों को सब्र की तलकीन करने के लिए हमने आपको जोड़ा है। सब्र की तलकीन, सब्र कीजिए और दुआओं का एहतमाम कीजिए और यहाँ से जाते हुए किसी किस्म का शोर शराबा बिल्कुल होने मत दीजिए, किसी किस्म का नारेबाजी मत कीजिए और राहगीरों को, रास्ता चलने वालों को किसी किस्म की अज़ियत और तकलीफ बिल्कुल पहुँचने मत दीजिए। जिस तरह आज आपने शहादत की है यहाँ जमा होकर तमाम मुहतमे को, हुकूमत को, पुलिस को कि मौलाना का किरदार ऐसा दाखिला नहीं है, मौलाना बिल्कुल साफ, शरीफ और मुल्क से मोहब्बत रखने वाले अमन पसंद शहरी है। ऐसी शहादत हर जिले के उलमाए किराम जमा होकर आवाम को लेकर शहादत पेश करें और हुकूमत को, कलेक्टर को बताएं कि मौलाना का किरदार ऐसा नहीं है, मौलाना के साथ जो कुछ है वो ज्यादती और जुल्म है। इसी तरह मैं एक बात और आपको बताऊं कि मुल्क भर से फोन आ रहे हैं, सिर्फ शहर के नहीं, पूरी रियासत से और पूरे मुल्क से, बल्कि बाहर के मुल्कों से भी फोन आ रहे हैं। सब मौलाना के लिए दुआएं कर रहे हैं। हज़रत हकीम करीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम जो खलीफा हैं हज़रत शाह अब्राहम साहब के और उनके जानशीन हैं,
طرح مسلسل کوششیں کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت برآمد فرمائے.